ओके अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ओके, हमारा सेशन चल रहा है बच्चों ज़ेंडा के नॉवल के। लास्ट लेक्चर मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर 4 डिफ़ाइन किया था मैंने। इवन इसमें जो कैरेक्टर जो दिए उसको भी डिफ़ाइन किया था। अब इस लेक्चर में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से लेकर 9 तक इसमें लेक्चर्स हैं। इसको लाजमी आप सुनें, ठीक है स्टूडेंट? थैंक यू। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमारे पास नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 और विच नेम द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडरस्टडी। इसकी मीनिंग है मुतबादिल अदाकार के कारनामे, ठीक है स्टूडेंट? अब सुने और से। सैप एंड फ्रिट्ज डिसाइड दैट एंडाइल शुड impersonate the king until king is well enough. Clear है? The shape of his beard dress him in the king's uniform and take the king's sword and revolver. यानी उसको हीरो को रेडी कर दिया। They hide the kings in the cellar, यानी किंग कौन है? रूडर एल्बर्ट। in the cellar में तहखाना and order जोसेफ कौन है? खानसामा उसके, to guard him. The old woman who cooked for them is tied and up and gagged में धमकाना, to prevent her from spreading the news. Concept instruct Zendaya on how to behave like a king. They board a special carriage जो माइकल ने भिजवाया था बादशाह के लिए at the railway station and head for Stalso. रवाना head from it, रवाना हो. They arrive at Stalso and are welcomed by government and army officials. Crowds cheer the king. और सब ने कहा the king. The king की आवाज लगाने लगे. Okay? Understand student? Now we move on next slide. Continue for chapter 5. Okay student, now start chapter 6. The secrets of a cellar. कोठरी के राज। और चैप्टर 7 इसमें His Majesty sleeps in Stalso. बादशाह सलामत स्टाल्सो में सो रहे हैं, ठीक है? अब क्या बातें हैं? Let's analyze. Listen carefully. The coronation procession begins with the bells ringing, bands playing, and people cheering. Everyone is in high spirits in the new town. But there is a dislike of the king in the old town. दो town थे इस टाउन में, old town, new town. Old town वाले dislike कर रहे थे हीर बादशाह को और new town वाले appreciate कर रहे थे. The people in the old town prefer Duke Michael as king. Azandale rides alone through the crowd in the old town to show that the king trusts him. बादशाह जो है वो बार बार शो कर रहा था कि मैं उनको लाइक मैं ट्रस्ट करता हूँ. Cheering grows as the king passes through the town. The coronation takes place at the cathedral church. The impersonating में क्या होता है? बहरूपिया. King Azandale meets the beautiful princess Flavia and the evil Duke Michael. दोनों के सामने उनसे होता है. फ्लेवर देख के बहुत खुश होता है. माइकल देख के समझ लेता है वास्तव में ये कौन है? विलेन लग रहा है इसको. Azandale feels discomfort with Flavia presence. She noticed a slight differences in the king. She warns him to be careful of Duke Michael. Azandale makes his presence in the palace. Their conversation ended by the cheering crowd. The king's arrival was welcomed with the great guns fire. Then he goes to the dining room and sat with Duke Michael and Princess Flavia. खाने की टेबल पर वो tense meeting was there. Flavia देख रही है उसको, हीरो को, और माइकल उसको देख रहा है, गुस्से में आ रहा है कि क्या हो गया. Okay, now continue next slide. Okay, student, continue for chapter 6 and 7. After the banquet, Dawat, Sap and Zendaya disguised as Sap's orderly. Of course, दोबारा उसने रिलेशन करना है. तो कहाँ जाना उसको? ज़ेंडा के लॉज में बादशाह को रिकवर करवाने के लिए. Orderly secretly leaves the palace and rides out of the city unobserved. लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कि कौन यहाँ से जा रहे हैं, छुप कर निकल गए. So it stays behind to prevent anybody from entering the king's room. और फ्रिट्ज को बोल दे कि किसी को कमरे में आने आपने देना नहीं, आपने बाहर रहना और बोलना कि बादशाह सलामत सो रहे हैं.
and discovering the king's absence. Sap knows that Michael has had news from Xander. सैप को मालूम हो गया था कि Xander से खबर आ गई होगी माइकल के पास. A few miles before Xander, Sap hears horsemen riding fast behind them. और of course कुछ माइल की दूरी पर उसको आवाज आने शुरू, घोड़े टापों की आवाज. He and Xandal stop hide at a fog. झाड़ के पीछे छुप गए वो लोग. In the roof road to see who they are and where they are going. They Michael and his servant. वो कौन थे? माइकल और उसके नौकर थे. मैकॉल उसका बॉडीगार्ड भी था. After hesitating whether to go to castle or the lodge. अब सैप वो माइकल घबरा रहा था कि वो लॉज जाए या फिर ज़ैंडा, तो आपको उसने ज़ैंडा जाने को प्रेफर किया किले पे. They take the road to the castle. Sap and Xandal then go to the lodge. Of course, Sap जो है वो कहाँ पहुंचे? लॉज में, जहाँ उन्होंने बादशाह को छुपा के आए थे. They find old woman has been released. जैसे एंटर होते हैं वहाँ पे बुढ़िया तो वहाँ से गायब हो चुकी है, रिलीज, तो बांगे गए थे उसको. ठीक है. Joseph is murdered and King has gone, obviously kidnapped by Michael's followers. Of course, King kidnapped Joseph को जान से मार डाला, बुढ़े वहाँ से निकल चुके. Sap decides that the only way to prevent Michael from seizing the throne is for Xandar to go back to Stalsu and continue to impersonate the king. सैप के दिमाग में आइडिया आ गया कि एक ही रास्ता है, अगर फोन कहाँ भाग जाएं, अपने स्टालसु पहुंच जाए, दोबारा किंग की एक्टिंग करें, तो ऑफकोर्स असली बादशाह जान सेफ है, वरना वो मर जाएगा. Outside the lodge, they attack a party of Michael's men coming to bury the body of Joseph. कि उसके बाद माइकल ने भेजा, जाओ बॉडी को दफना कराओ, संभाल कर आए. जैसे सामने होते वहाँ पे माइकल के आपके बंदे और सामने होते हीरो और सैप से. एंड किल 3 of them. इस लड़ाई में माइकल के 3 बंदे नौकर मारे गए. Then they ride back to Stalsu, enter the city and palace unobserved and rejoin spirits in the king's room. और फिर वो लोग किंग के रूम को वो लोग दोबारा ज्वाइन करते हैं. यहाँ पर समझता है सैप फ्रिट्स के शायद बादशाह आ गए, वो हक करता उसको. ये बाद में सैप बोलो भाई इसका हक मत करो, ये वही रुपया है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, चैप्टर नेक्स्ट हमारे क्या है, लेट्स. थैंक यू वेरी मच गाइस. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. ठीक है. ओके स्टूडेंट, इस हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा 8 है, A fair cousin and a dark brother. एक हसीन अजीजा और सिया भाई, यानी काले बालों वाला भाई. इसमें सुने क्या क्या बातें हो रही हैं. The real king is not in the lodge. Of course लॉज में नहीं पाया गया. Xandal urged Colonel Sap to rescue the king, real king from Michael's custody. उसने बादशाह हीरो ने उसको परसुएड किया कि भाई चलते हैं, अटैक करते हैं किले पर और वहाँ से बादशाह को रिकवर करवाते हैं. तो सैप ने कहा इतना आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है. बट सैप रिमेन्स काम एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन टू Xandal. पूरी बातें बताई क्यों नहीं अटैक कर सकते हैं. दे मस्ट रिटर्न टू Stalsu at once and Xandal must continue to act as the king. और दोबारा वो किंग की एक्टिंग करे. Otherwise, Black Michael will inform the people that the king is a drunkard and he would be the next king. और माइकल जो है वो बता देगा कि बादशाह जो है वो शराबी था और इसलिए वक्त पर नहीं पहुंच सका अपने ताज पोशी में, इसलिए उसको हटाकर मुझे बादशाह बनाया जाए. समझे बस. देख रहे बच्चों के इसमें प्लॉट से साजिश बनी हुई है, एक असली और सफेद भाई है. Colonel Sap explains further that as long as Xandal acts as the king of Britania, the real king will remain safe. जब तक आप एक्टिंग करते रहोगे ऐसे बादशाह की, तो एल्बर्ट उसके हाथ में सेफ रहेगा. Black Michael cannot kill the real king. Xandal and Colonel Sap teach a lesson to the group of 8 horsemen. They kill 3 of them. तो 8 बंदे आते हैं माइकल के बॉडी दफन कराने के लिए. तो ऑफकोर्स माइकल ने हीरो और सैप 8 में से 3 को जान से मार डाला. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so continue chapter 8. Next day, Xandal carries out the routine duties of the king. A slight injury to the hand.
received in the previous night's firing in a convenient excuse for not signing the document. यहाँ पर इसकी लिखा है बच्चों एंथनी हॉप की, क्योंकि इतना होशियार था, उसने उस लॉज में लड़वाया माइकल के नौकरों से सैप्ट और हीरो को। उस लड़ाई में हीरो के हाथ में चोट आई, और चोट आने की बिना पर नेक्स्ट मॉर्निंग जब आती जमात डेलीगेशन के डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, तो उस मौके पर हीरो बादशाह ने मना कर, मैं साइन क्यों नहीं कर पाऊँ, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। अगर हाथ में चोट लगी हुई नहीं होती बच्चों तो आपको क्या होता, वो साइन करता फंस जाता, शक्ल मैच करती है, साइन तो मैच ही करेगा ना। ये इसकी स्किलफुल एंथनी हॉप। Fritz report that the three foreigners of Michael Sachs are in Stalso, and suggests the king is still alive and guarded by the three lieutenants of Sachs. There is now a deadlock between the two sides. Michael and his associate know that the king is an impostor, but they cannot expose him without revealing their own crime. सैप फ्रिट्स रिपोर्ट लेकर आ गया, 3 बंदे यहाँ पर हैं, स्टार्स में देख रहे हैं, और 3 कहाँ पर हैं, रैंडम। इसका मतलब है कि बादशाह अब तक जिंदा है, और तीनों को मालूम हो चुका है कि ये बंदा जो एक्टिंग कर रहा कौन है, नकली है, लेकिन वो क्यों नहीं बता पा रहे। अगर जैसे ही बताएंगे उसकी नकली, उसको अपनी असलियत भी दिखानी पड़ेगी, इसलिए वो लोग चुपचाप से केस कर रहे हैं। Zenda's twin aunts, the king's popularity rides through the street and calls upon Prince Flavia, और हीरो जो अपने पॉलिटिक्स दिखाने के लिए गली मोहल्ले में लोगों से मिल मिला रहा है, फ्लेविया परेशान हो रही है, इतना अच्छा से कैसे हो गई है। In the Prince Flavia's palace, he has a tense meeting with Michael and his three foreign followers. He got it, और कौन था, Bigoted, Barsonin and Deadchar. Since after her, other are present, they all have to keep up the pretense that Randall is the real king. और डिनर के मौके पर शाही महल में दावत दी गई माइकल को, हीरो को, फिलिप को। तो ऑफ कोर्स उस मौके पर यानी कि तमाम जो तो विलन को मालूम था कि ये बंदा कौन है, इसलिए, लेकिन वो लोग ना चाहते हुए उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको कि हाँ भैया असली बंदा है। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर 9, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सवाल यहाँ कहीं बनते हैं, लेट्स एनालाइज केयरफुली। नाम क्या है चैप्टर 9, अ न्यू यूज ऑफ अ टी टेबल। टी टेबल के नया इस्तेमाल, अ ग्रेट चांस फॉर अ विलन, एक बादशाह के लिए अजीम मौका, हंटिंग अ वेरी बिग बोर, एक बहुत बड़े पिग का शिकार। ये इस चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स है। टाइम पासेस, वह गुजरता गया, एंड Doyle successfully maintained his imposture. The presence of the six of Xander confirmed that the king is held prisoner there. One day, a letter signed, एक दिन जो ये खत पहुंचता है हीरो के पास, उसमें ए लिखा होता है, ए स्टैंड फॉर Anthony de Mauban, arrived for the king's बादशाह के लिए। It is obviously from Madame de Mauban. It asks the king to come alone at midnight. उसमें कहा जाता है कि आप मुझसे आधी रात को मिलें अकेले। The summer house, समर हाउस जो स्टाल्सू में, ये जेंडे में नहीं समर हाउस, ये स्टाल्सू में जो कुछ माइल आगे पर है। इन द ग्राउंड ऑफ अ large house in Stralsund. Okay. The writer says that she has important information to give and suggests that she is as concerned as a king to prevent Michael from marrying Flavia. और वो इतनी वो कंसर्न थी जिस तरह से प्रिंस फ्लेविया को कभी भी शादी होने नहीं देगी माइकल से। अगर शादी होती है माइकल से फ्लेविया की तो आपको वो तो बेकार देगी फिर तो, इसलिए वो हीरो की हेल्प करके बादशाह को बचवा कर शादी से करवाएगी फ्लेविया की बादशाह से, और खुद की माइकल से। वो उससे हेल्प करने के लिए आगे बढ़ गई, बहुत चालाक थी वो। Zendal and Sap suspect a trap, but Zendal gives them appointment, leaving Sap on which watch outside the ground of the throne. इस मौके पर सैप ने भी जाने को कहा, बट सैप को हीरो ने जाने से मना किया, आप दूर में रहो, एंटर अकेले मैं जाऊंगा। ठीक है, आगे क्या होता है लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, हीरो पहुंच जाते हैं समर हाउस में अकेले, और वहाँ वो मिससे मिलते हैं मोबाइन से।
He meets Madame de Mauban in the summer house. She discloses that the letter was written at the command of the Duke, and 3 men were coming to catch Zendal in the summer house and kill him. उसे बता दें कि आप फंस गए हो और ये माइकल के हुक्म पर मैंने खत लिखा था और 3 बंदे जो फॉरनर से वो आपको आके कैच करेंगे, ऑफर देंगे, वरना वो कैच करेंगे आपको. Then Michael intends to place either himself on the throne or Flavia. In either case, that he would marry her and make him ruler of the country, because Madame de Mauban wishes to prevent this marriage. और मैडम कभी चाहेगी नहीं शादी फ्लेविया से किसकी हो, माइकल की हो. She is betraying the Duke. इस तरह से वो ड्यूक को क्या कर रही है, बेट्राई करते वो लव को सेक्योर कर रही है. Zendal finds out the location of the real king in Xander Castle from entering the mobile, और बाद में उसने काफ़ी मालूमात गेन कर ली कि कहाँ किस तरह कहाँ वो किस रूम में उसको बैठाया क्या, ये पूरी मालूमात उसने माइकल के मोबाइल से गेन कर ली. ठीक है. देन व्हाट हैपन नेक्स्ट, गो नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. देखें किस तरह से वो माइकल को धोखा दे, देखो नहीं एक्चुअली वो मोहब्बत सेव कर रही है. ठीक है. ऐसे ऐसी औरतें होती बच्चों. ओके स्टूडेंट, डेट चार्ट इंग्लिश जो एंटर होते हैं वो समर हाउस में डेट चार्ट था, डिकाउटेड था और बर्सनेंट था. ट्रैप Zendal इन द समर हाउस, घेर लिया. दे स्पीक टू हिम थ्रू द डोर एंड ऑफरिंग अ लार्ज ब्राइब विद सेफ कंडक्ट टू द फ्रंटियर इफ ही विल नॉट लीव. रिटर्न फॉरवर्ड, अगर साथ साथ वो नहीं छोड़ेंगे. ही प्रिटेंड्स टू अग्री, बट when they open the door of summer house, he charges upon them, holding in front of himself an iron top table. Of course, यानी कि जब हीरो नहीं मानता उनके ऑफर को, तो ऑफ कोर्स ने क्या किया, गेट को तोड़ता है. और जैसे गेट तोड़ते वैसे उस दौरान जो है वो मोबाइल ने उसको बता दिया था कि आपने इनको अगर रोकोगे तो ये आपको जान से मार डालेंगे. आपने इनको ऐसे रिस्क करके भागना है. आपको मेन आंगन में एक बड़ी सीढ़ी, उस सीढ़ी को पार चढ़कर आपने पार कर लिया, यू विल बी सेफ फ्रॉम योर लाइफ. और कमरे में तो आपको दिखता है कुछ है नहीं पास. ही जस्ट फाउंड द आयरन टेबल, उसने उसको अपनी शील्ड बना लिया सामने. जैसे गेट खुलता है तो सामने वो ले आते हैं टेबल, जब वो धक्का देता है वो तीनों आंगन में गिर जाते हैं. और जब फायर करते हैं तीनों तो आपको गोली कहाँ लगती है, उसके आयरन टेबल के. दे फायर देयर पिस्टल बट द बुलेट merely hit the iron table, and they are sprawling down the steps. As Zendal wounds get charred with a pistol shot escape over the wall of the ground by means of a ladder that Madame de Mauban has stole him off and safely rejoined set. और आपको बड़ी मुश्किल से उसने स्विफ्टली वो लैडर को ढूंढता है और उस तरह उसने उस पर चढ़कर वो वहाँ से पार करता है और पार कर पहुँचता है ऑफकोर्स दीवार थ्रू और सैफ से मिलता है. सब हाँ भाई कैसा रहा, तो चलो भागो भाई फटाफट. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे यहाँ पे एंडमार होता है. ठीक है. देन we have to meet next lecture number 3 हमारे पास है, उसमें आपको बकाया लेक्चर के बारे में बताऊँ. ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड अ लॉट. आपसे काम यही बच्चे जो भी आपको लेक्चर दिया है उसको बार बार पॉज करके सुने, अंडरस्टैंड करें, इसके स्क्रीनशॉट लगे करें. ठीक है ना, अपने पॉइंट्स को देखें. तो भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफकोर्स आपने क्लास हमारे फिजिकल स्टार्ट होगी तो आपने उसको मुझसे डिस्कस. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.